Yeah. First application. हाँ, कौन है बेटा? नमस्कार सर, नमस्कार। रेट मेजर ने बेटा? हाँ, इकडे एवढे दिले का application of derivative tangent and normal, rate measure, approximation, Rolle's theorem and Lagrange yes value theorem, increasing and decreasing function for maximum mean. ठीक है सर। Write down first application rate measure. रेट मेजर की एप्लीकेशन फर्स्ट। रेट मेजर लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट एस अ पार्टिकल लिया, द डिस्प्लेसमेंट एस अ पार्टिकल, सबको सुना आ रहा है? द डिस्प्लेसमेंट एस अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट एस अ पार्टिकल at time small t, at time small t is represented as, is represented as s is equal to half of t minus 60, 60. Find the acceleration, find the acceleration at time t, find the acceleration at time t when the velocity vanishes, when the velocity vanishes। फिर से एक बार देखो, the displacement s of a particle at time t is expressed as s is equal to half t cube, half t cube minus 6t. Find the acceleration at the time when velocity vanishes, when velocity vanishes। देखिए solution, differentiate with respect to t। So first ds upon dt is equal to v bar is equal to 3 by 2 t square minus 6, then d2s upon dt square dv upon dt bar is equal to acceleration a bar, this is a 3t condition given, given dv upon dt bar is equal to 0 vanishes 3 by, सर 0 कैसा आया? बिकॉज वेलोसिटी vanishes, 3t square minus 12 is equal to 0, 3 कॉमन निकाल दिया, t minus square minus 4 is equal to 0, t square is equal to 4, t is equal to plus minus of 2, so therefore t is equal to 2 second, so acceleration a bar is equal to 3t, so a bar is equal to 3 into 2, that is 6, क्या रहेगा यूनिट पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है 6 यूनिट पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। लिख लीजिए बेटा, देखो ऑन द कोर, ऑन द कोर x cube is equal to, on the core x cube is equal to 12y, on the core x cube is equal to 12y, find the interval, find the interval
of values. Find the interval of values of x. Find the interval of values of x for which for which the abscissa for which the abscissa changes for which the abscissa changes at a faster rate. Abscissa changes at a faster rate than the ordinate. Abscissa changes. Abscissa changes. फिर से देखो, on the core x cube is equal to 12y. Find the interval of values of x for which the abscissa changes at a faster rate than the ordinate. Faster rate than the ordinate. Faster rate than the ordinate. Hello? Faster rate than the ordinate. देखिए सॉल्यूशन, ये आपको दिया इक्वेशन ऑफ कोड, ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट. डिफरेंशिएट with respect to y, we get 3x square dx by dy is equal to 12. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये dx upon dy is equal to 12 upon 3x square. So dx upon dy is equal to 4 upon x square, equation number 1. उसने क्या दिया है, given mod of dx upon dy greater than is equal to 1. ये कैसा सर, क्योंकि वो दिया है एब्सिसा, क्या बोला उसने, कंडीशन दिया है रेट ऑफ दैट इज dx अपॉन dy ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1. इसका मतलब हो गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1. तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. So 4 minus x square upon x square greater than is equal to 0. So x square minus 4 upon x square less or equal to 0. This implies that x square minus 4 less or equal to 0, x not equal to 0. Okay. So x square less or equal to plus 4, x square less or equal to 2 square, x lies between minus 2 to 2 minus 0. So x belongs to open minus 2 to plus 2 minus of 0. उसमें 0 नहीं आएगा because 0 पे does not exist है, greater than is equal to minimum. A point PXY moves moves along the line whose equation is x minus 2y plus 4 is equal to 0. A point PXY moves on a line whose equation is x minus 2y plus 4 is equal to 0 in such a way that y increases
at the rate of 3 units per second. Y increases at the rate of 3 units per second. Full stop. The point A06, the point A06 is joined to P, and the segment AP is prolonged, to meet the x-axis, in a point Q, capital Q, full stop. Find how fast the distance from the origin to Q, is changing when P reaches the point 4 4. 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 फिर देखिए, a point PXY moves along the line whose equation is x minus 4y plus 4, x minus 2y plus 4 is equal to 0 in such a way that y increases at a rate of 3 units per second. The point 06 is joined to P and segment AP is prolonged to meet the x-axis in point Q. Find how fast how far the distance from the origin to Q changing, then P reaches the point 4 4. ठीक है, देखिए आपको दिया है dy बाय dt, आपको दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? ऐसा दिया ना? हाँ, देखिए जैसा ये आपको पॉइंट दिया गया है Q, ये पॉइंट दिया गया है Q, ये पॉइंट दिया गया है A06, है ना? ये पॉइंट दिया गया है PXY, ये आपका ओरिजिन, यहाँ से इतना डिस्टेंस जो मैंने z दिया है, ओके, वही आपको dz अपॉन dt आपको निकालना है, चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, ओके। यहाँ से इतना डिस्टेंस को नाम दे दिया पॉइंट, इसको नाम दे दिया x डिस्टेंस, ये हो गया z डिस्टेंस, ओके। देखिए सॉल्यूशन ये ऐसा जाएगा इधर, ये ऐसा, ठीक है। देख लीजिए सॉल्यूशन इन ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल PMQ, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल AOQ सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ, समझे? एक कॉमन एंगल है और एक 90 का एंगल है, दो ए टेस्ट है ना, माहिती आहे का? ए टेस्ट, हाँ
AO upon PM is equal to OQ upon MQ is equal to AQ upon PQ. हाई डिस्टेंस 6 है. हाँ वाई भी एक्स वाई है ना. एवं डिस्टेंस दिया जेड है. लेट OQ is equal to Z, OM is equal to X, PM is equal to Y. बघा AO O किती आहे बेटा 6 आहे बेटा आपल्याला. O क्या दिया है 6 दिया है. देख लो बेटा. AO is equal to 6, PM is equal to Y, OQ is equal to X, OQ is equal to Z माइनस OQ कितना दिया है Z दिया है. तो अपना OQ इज इक्वल टू Z दिया है. MQ ओके. OQ इज इक्वल टू Z. MQ हो जाएगा आपका Z माइनस ऑफ X. करेक्ट. इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1. Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. 6 अपॉन वाई 4 Z अपॉन Z माइनस ऑफ 4. आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी 6Z माइनस 24 is equal to 4Z. So 2 हाँ बेटा फोर दिया है ना. 24 तो Z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12. Z हो जाएगा 12. देखिए तो पहला बेटा अपना यहाँ पे ये हो जाएगा. देखिए क्रॉस किया आपने 6Z माइनस 6X इज इक्वल टू Y इंटू Z. ओके. तो आपने यहाँ पे इसकी Z को कॉमन निकाल दिया. तो 6Z माइनस YZ इज इक्वल टू 6X. ओके. तो Z को कॉमन निकाल दिया तो 6 माइनस ऑफ Y इज इक्वल टू 6. X की वैल्यू ले जाए 4. X की वैल्यू उसके ऊपर से लाइन के ऊपर 2y माइनस ऑफ 4. ठीक है. तो Z इज इक्वल टू 12y माइनस 24 अपॉन 6 माइनस ऑफ y. ठीक है बेटा. सो dz अपॉन dx इज इक्वल टू 6 माइनस y का स्क्वायर 6 माइनस ऑफ y इंटू 12 dy बाय dt है dt dy बाय dt माइनस 12y माइनस ऑफ 24 इंटू माइनस dy बाय dt. dy बाय dt दिया गया है, y दिया गया है. कितना y है 4 है. 4 है ना. 4 दिया ना बेटा y. dy बाय dt 3 दिया है. कितना दिया है 3 माइनस 12 4 सा 48 माइनस 24 इंटू माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 4 सा होल स्क्वायर. कितना हो जाएगा देख लो. 6 माइनस 4 मतलब 2 इंटू 12. देखिए 4 3 सा 4 6 था. दिस इज इक्वल्स टू 9 दूने 18 साइन 3 18. कितना हो जाएगा 36. कितना हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड 36 मीटर पर सेकंड. The ends capital A and B. The ends capital A and B of a rod of length root 5 are sliding along the curve y is equal to 2x square. लो
let capital XA and XB be the x coordinate of the ends, x coordinates of the end, x coordinates of the ends at the moment at the moment at the moment when capital A is at 0 0 and capital B is at 1 2. Capital B is at 1 2. Find the value of dxb as to dxa. Find the value of dxb as to dxa. dxb as to dxa. देखिए क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है एक्स ए एक्स बी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां रख दिया तो एक्स ए यहाँ रख दिया तो एक्स ए पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स ए वाई ए। ये पॉइंट क्या बनेगा, देखिए एक्स ए रख दिया तो वाई क्या बन जाएगा, ट्वाइस एक्स ए का होल स्क्वायर। ट्वाइस क्या बनेगा, ट्वाइस एक्स ए का होल स्क्वायर। दूसरा एक्स बी वाई बी लिया आपने, वो पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स बी ट्वाइस एक्स बी सा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझे, या ऐसा दिया गया है, ऐसा ये वाला एक पॉइंट एक्स ए ट्वाइस एक्स ए का होल स्क्वायर, ये एक्स बी ट्वाइस एक्स बी सा क्या होगा, होल स्क्वायर। इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी, और ये पूरा क्या दिया है, √5। ठीक है, ये आपका ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ए बी आपको दिया गया है √5। ठीक है, डिस्टेंस ए बी, इसको स्क्वायर किया, सॉल्व किया आपने, इसका स्क्वायर ये बन जाएगा 5। डिस्टेंस ए बी को सॉल्व किया आपने तो हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी सा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बी सा स्क्वायर सा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए आपको एक्स बी को एक्स ए से कन्वर्ट करना, डिफरेंशिएट करना है। देख लीजिए पहले कैसे करते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए, पावर बिकम द कोएफिशिएंट्स, एक से पावर कम हो जाएगा, इनटू एक्स ए था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए 1 1 है ना, 1 माइनस डी एक्स बी का विथ डी एक्स ए प्लस पावर बिकम द कोएफिशिएंट्स, 2x a सा स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बी सा स्क्वायर इनटू 4x a पावर इतनी कम ही गई, एक्स ए तो 1 माइनस 4x b डी एक्स बी एस टू डी एक्स ए इज इक्वल टू 0। फाइव से डेरिवेटिव 0। ओके, लेट that dxb as to dxa, याला तू काही d म्हणून दे, शॉर्टकट हे विल तुझं 2 to गेट कॅन्सल। ठीक आहे, काही रहे एक्स ए माइनस एक्स, हो तो 2 to कैंसिल ना, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है,
इंटू 1 मायनस ऑफ डी, कळलं, डी काढायचं आपल्याला, प्लस ट्वाइस एक्स ए चा स्क्वेअर मायनस ट्वाइस एक्स बी चा स्क्वेअर इंटू 4xa मायनस 4xb डी इज इक्वल टू 0. तुला पॉइंट दिला आहे, ए पॉइंट दिला आहे, ए ॲट 0 0 आणि बी कुठे आहे, बी ॲट 1 2. कळलं. बघा आता ही व्हॅल्यू आपण ठेवून देऊ याच्यामध्ये. बघा जेव्हा हा एक्स ए हा 0 आहे तेव्हा एक्स बी किती आहे, 1 आहे, होत आहे 0 मायनस 1, कळलं, इंटू 1 मायनस ऑफ डी प्लस 2 इंटू हा 0 चा स्क्वेअर मायनस 2 इंटू 1 चा स्क्वेअर 4 इंटू 0 मायनस 4 इंटू 1 म्हणजेच डी इज इक्वल टू 0. याला सॉल्व करा. मायनस 1 मायनस ऑफ डी प्लस मायनस 2 इंटू 4 इंटू 1 मायनस ऑफ डी इज इक्वल टू 0. हे झालं, हे मायनस 1 प्लस डी मायनस 8 प्लस 2d इज इक्वल टू 0. म्हणजे किती होईल ते, 3d इज इक्वल टू 9. म्हणजे d इज इक्वल टू काय झालं बेटा, 3. d इज इक्वल टू 3. तर d म्हणजे काय होतं, dxb अपॉन dxb. तो dxb अपॉन dxa इज इक्वल टू 3. Next problem. X and y are the sides of two squares. X and y are the sides of two squares such that y is equal to x minus x square. Y is equal to x minus x square. लिखा. Find the rate of change of the area. Find the rate of change of the area. Find the rate of change of the area of the second square. Second square with respect to the first square. Find the rate of change of area of the first square with respect to the second square. Second square with respect to the first square. Second square with respect to the first square. है ना. देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. पहला स्क्वायर उसका एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर. दूसरा स्क्वायर उसका एरिया क्या है, वाई स्क्वायर. ठीक है. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है. ठीक है. ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन इसका ट्वाइस ऑफ एक्स. ठीक है. तो y का डेरिवेटिव आपको मालूम है, y क्या दिया है, y दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स. ठीक है. इसकी रन तो इतना ही, पहले इतना रन दो, ये इसको नाम दो 2 टू गेट कैंसल. दिस इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स dy अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 1.
देखिए आपको y दिया गया है बेटा x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा ये 1 माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स, 1 माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स। उसने क्या पूछा आपको बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा? Find the rate of change of area of second square with respect to first square. रेट ऑफ चेंज तो टी के साथ पे रिलेशन होगा, टी से रेट लिया है क्या इसने? रेट, रेट मतलब टी होता है, रेट टी से लिया है क्या? रेट उसी के साथ रेट लिया है, और कोई बात नहीं, उसी से रेट लिया प्रभु, कोई टेंशन नहीं अपने को, वैसा ही रखा है, वैसा रखा है, कोई चेंज नहीं। देखिए रख दे बेटा वैल्यू इसमें, तो क्या हो जाएगा बेटा डी वाई स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं a2, इसको बोल सकते हैं a1, है ना। y मतलब x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 माइनस ऑफ 2x अपॉन क्या है बेटा x। इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से बेटा x कॉमन निकाल लो बेटा, x कॉमन निकाल दे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ऑफ x, 1 माइनस ऑफ 2x अपॉन x, x इज गेट कैंसर। ये हो जाएगा बेटा अपना 1 माइनस 2x माइनस x प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, मतलब ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दैट इज द dA2 अपॉन dA1 आया, दिस इज द आंसर, फिनिश होगा आंसर। बाकी का कल देखेंगे।